Hmm. Okay. हेलो एवरीवन, सामर्थ्य सेशंस सीजन 2 के आज फर्स्ट लाइव इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अक्षित है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौमित्र चक्रवर्ती। सौमित्र चक्रवर्ती डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो बीआईटी मेसरा लालपुर कैंपस रांची झारखंड में है और उनको ओवरऑल 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। सो सौमित्र जी, वेलकम टू सामर्थ्य एंड यस सर, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा आप और बताएं हमें। Thanks a lot, Akshit. So before we begin the session, I would like to get it on record that I am no expert. All right, Akshit has been kind enough to term me as an expert. I am very much a work in progress, and I am a student of life. So that I would like to establish right at the very beginning. Right. Second thing is that I am very nervous from within. All right, this is my first Facebook live, so I am as nervous as anything from within. So all the audience who are going to join me, I expect them to be kind enough with me. I may falter occasionally, so I would expect you to be kind enough with me. I have come here to just share my views, all right, and support Akshit in his very noble mission. He is doing something very positive, especially in these times of lockdown where sentiments and emotions are running low. All right, everyone is very frustrated. So given this scenario, when Akshit asked me to participate in this particular effort, I was very happy. But let us see, I would like to make it a constructive 40 minutes for everyone. Yes, please. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। सो आज का सेशन हमारा यूथ और एजुकेशन के ऊपर मेन रहेगा एंड ये लाइव सेशन रहेगा, साथ साथ में हम क्वेश्चंस वगैरह भी, अगर आपको कोई भी लाइव ऑडियंस में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चन साथ में आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, हम साथ साथ में उसका आंसर भी देते रहेंगे। साथ साथ में मेरे भी काफी क्वेश्चंस हैं सर, कि मैंने काफी स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात करी है एंड उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके कुछ टॉपिक्स हैं जो वो डिस्कस करना चाहते हैं एक एक टीचर के साथ, एक एजुकेशनिस्ट के साथ। तो हम उसी के साथ मेनली शुरू करते हैं। ओके, सो सर सबसे पहला एक्चुअली एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारे उसके अंदर इंडस्ट्री, मतलब एजुकेशन की हम जब भी बात करते हैं तो एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह को इतना नहीं दिया जाता है इसके अंदर फोकस, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, या ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते या थोड़े से आउटडेटेड होते हैं। सो उस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि ये कंसर्न आई डोंट थिंक ये नया है, ये काफी पुराना कंसर्न है, अपडेट होता भी रहता है बट स्टिल आउटडेट हो रहा है साथ साथ। आप उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे एज एन एजुकेशनिस्ट? ये जो कंसर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी वैलिड कंसर्न, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ये कंसर्न काफी वैलिड है और ये पिछले कई सालों से ऐसा चला आ रहा है। सिलेबस रिवीजन इज बीइंग डन, curriculum enhancement is being done, efforts are being done on the part of the policy makers to ensure that this concern is addressed. ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में कुछ हो नहीं रहा है। आप देखेंगे तो इस फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ रिवीजन के तौर पर हमेशा होता रहता है। कुछ सिलेबस को कभी कभी कर्टेल किया जाता है, कुछ नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, my experience is more with the management side because I have been teaching students of undergraduate and postgraduate levels in management. So uske context mein I can tell you that a lot has been done in the recent past. The most notable change is that CBCS curriculum has been introduced, which stands for choice based curriculum system. All right. Okay. So this has been introduced about 2 years ago. So the basic feature of this particular scheme is that I am a student of engineering. Suppose I am a student of computer science engineering, but I am interested in philosophy as well. मुझे spiritual literature में भी interest है. So I am being provided this option that apart from studying my core subject, that is computer science, if I wish, I can also have an additional subject in spiritual literature. तो ये एक CBCS करिकुलम जो है, ये एक नोटेबल डेवलपमेंट है
इस फील्ड में, all right. Okay. But still I would like to say that this is what I am aware of in the field of management, okay. But in the other areas like say BA, BSc or BCom or even at the +2 level, this is a concern that is very valid. स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका जॉब सिनेरियो के साथ कोई खास लिंक नहीं है। तो ये जो कंसर्न है ये लंबे टाइम से है, ये वैलिड है। नाउ इज द टाइम दैट देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स। आई मीन जो पॉलिसी बना रहे हैं शायद उन तक स्टूडेंट्स की आवाज नहीं पहुंच पा रही। Alright. Okay. मैं ये नहीं कहता कि they are not trying their best. They are doing it on a regular basis. They are modifying the curriculum. They are adding new topics. They are deleting the obsolete topics. But the point is that perhaps the concern in most clear terms that is not reaching them. Okay. So ये जो communication gap है इसको address करना बहुत जरूरी है. Parents have to play a role. Teachers have to play a role and students also have to play a role. They have to make their voice heard. तो जब तक ये communication barrier नहीं overcome किया जाता है, this issue will not be addressed properly. That is my view. Okay. सर अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जब एक्चुअली सामर्थ्य शुरू किया था, ठीक है, तो हमने मेन एक्चुअली कंसर्न यही रखा था सामर्थ्य के लिए स्पेसिफिकली कि इंडस्ट्री और जो बीच में गैप आता है इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में, राइट, तो उसको हम कहीं ना कहीं ब्रिज करें। तो हम उस टाइम पे मतलब जो उस टाइम पे फाउंडिंग टीम जो थी, तो उस टाइम पे हम एक चीज सोच रहे थे कि इंडस्ट्री को एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, कि इंडस्ट्री के लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर उतरें एज अ गेस्ट, या कुछ इस तरह की चीजें हो, कुछ इस तरह के इवेंट्स हो कि जहाँ पे इंडस्ट्री के लोग आके, अगर हम आते हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर फॉर ट्रेनिंग, या एजुकेशन सेक्टर इंडस्ट्री में उतरता है, यू कैन से एज एन इंटर्न्स या ट्रेनिंग टाइप पीरियड, ये वो, तो वो कितना एक रहेगा? जस्ट मतलब क्वेश्चन, क्योंकि अब बात करी आपने तो सामर्थ्य हमने एक्चुअली जैसे कहते हैं विजन से हमने शुरू किया हुआ है ये चीज। तो एज फार एज ये दिस इनिशिएटिव इज कंसर्न्ड, जो आप बता रहे हैं वो काफी हद तक ऑपरेशनल भी है, मगर 20 स्कूल्स के कंटेक्स्ट पे है। जैसे हमारे बच्चे हैं वो एमबीए कर रहे हैं, somebody is pursuing an MBA in finance. So what happens is that in the second semester there is a specific project that he has to carry out, all right, at a given organization. वो उस organization में जाते हैं, 6 हफ्ते के लिए उस organization के work culture के साथ वो acclimatize होते हैं, और they gain a little bit and they have to face a viva voce where they need to explain that what did they do in the period of these 6 weeks. All right. So this is an effort that the education level at MBA level tries to impart to the students. That is to give them some relevant industry specific taste of work culture. ये हम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग यही चीज we have also replicated at the BBA level as well. Okay. And apart from this, there are some other initiatives in B schools, almost all B schools in India, that we incorporate guest lectures by the corporates. Okay. What I am teaching that may not have 100% relevance in the industry. I should be very honest to accept this flaw. मुझे ये accept करना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कि that may not be matching up to the industry level. So this flaw has to be accepted first of all. And secondly, persons from the industry, they may be invited to come and deliver guest lectures. All right. An HR manager is going to discuss principles of HRM much better than a conventional professor. This is what I believe in. तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये समर ट्रेनिंग वगैरह जो है वो रेगुलर बेसिस में होते रहते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हम ओकेजनली बुलाते रहते हैं टू डिलीवर गेस्ट लेक्चर्स सो दैट आवर स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम इट। और स्टूडेंट्स को ऐसा ना फील हो कि वॉट एवर वी आर स्टडिंग दैट इज एंटायरली बुकिश। एक बैलेंस रीच करना बहुत जरूरी होता है। सो द अदर पर्सन्स हु कम एंड डिलीवर द लेक्चर्स, so students feel a little bit empowered that now we have taste of the industry as well and as well as the academic background. So this is what is taking place at the BBA and MBA levels. Okay, ठीक है जी। मतलब इसका मतलब इन प्रोसेस में या कहीं ना कहीं ये है ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में। ओके, ठीक है सर।
बाकी सर एक पॉइंट आया था जो काफी बच्चों ने काफी बच्चों ने इस बात के रिलेटेड भी इन्होंने पॉइंट किया कि जो हम स्ट्रीम्स का सेग्रीगेशन कर देते हैं 10th क्लास के बाद, कि आपने ह्यूमैनिटीज में जाना है, आपने आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, राइट। तो एक उनकी तरफ से आया कि ये वाली चीज हमको 2 साल पहले ही कर देनी चाहिए 9th लेवल पे, कि 9th स्टैंडर्ड से हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। उनको लगता है कि 2 साल हमारे लिए बहुत कम होते हैं और इतना ज्यादा सिलेबस होता है 11th-12th का कि हम कवर अप नहीं कर पाते। एंड तो वो 12th और 11th-12th के सिलेबस में बहुत ज्यादा दे गेट स्टक, नॉट स्टक इन द सेंस कि हाँ एकेडमिक स्टक वगैरह, बट बहुत ज्यादा ओवरलोडेड बर्डन फील करते हैं। तो उस रिलेटेड आपका क्या कहना है कि अगर 9th स्टैंडर्ड से ही अगर हम सेग्रीगेशन करते हैं तो क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव रह सकता है इसका? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कंसर्न भी काफी हद तक वैलिड है। हम्म कन्वेंशनल एजुकेशन सजेस्ट दैट व्हेन वी अराइव एट द मैट्रिकुलेशन स्टेज, जब हम मैट्रिकुलेशन स्टेज तक पहुंचते हैं तो एक ये एज्यूम किया जाता है कि बाय दैट टाइम वी हैव द मैच्योरिटी लेवल टू डिसाइड दैट व्हाट वी आर मेड फॉर। ओके, that whether I am cut out for science, whether I am cut out for commerce or whether I am cut out for arts। तो 10th में जाकर बच्चे में इतनी समझ हो जाती है कि वो ये डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं कि कौन सा स्ट्रीम उनके लिए सही रहेगा। ये एजम्पशन पर करंट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बेस्ड है। और उसके पहले प्रीवियस क्लासेस में 1 से 10 तक सभी विषयों की पढ़ाई करना दैट इज कंसिडर्ड मैंडेटरी। So that is the assumption on which this particular educational system is based. Now, assumptions are always open to debates. Clear? We have to accept it कि ये एक assumption है, ये कोई standard rule नहीं है. It is always open to debates, that one can always debate that whether this assumption is right or not. Okay? So अभी जो आप बता रहे हैं कि whether it is practical or feasible enough that this segregation stage which takes place at 10th, if it is preponed and being done at class 9. So again, 9th, yes. this is a very valid question. This question questions the assumption that has been operational since the last so many years. All right. So अब एक ही counter question आ सकता है कि can you assure me that at class 9 the student is mature enough to decide what his career is going to be or what are his strengths and weaknesses। तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है and it becomes again a deadlock kind of a situation। But once again, this is something that can be addressed via open communication। All right, that एक एवरेज स्टूडेंट का IQ लेवल कितना है, उनका मैच्योरिटी लेवल कितना है, और आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि उनका इमोशनल कोशेंट अप टू द मार्क है या नहीं। EQ levels, that is very important in today's times, that whether it is up to the mark or not, that at class 9 they may be provided with the liberty to make this very vital decision that what they are going to do in future, what are their strengths and weaknesses। So once again, open communication is needed, a lot of research needs to be carried out, and only then मुझे लगता है कि हम लोग इस विषय में कुछ ठोस स्टेप ले सकते हैं। जी ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं एक्चुअली एक और बात शेयर करना चाहूंगा जो मुझे काफी अच्छी लगी जब मैं बच्चों से बात कर रहा था। मतलब बच्चे इन द सेंस कि जो अभी कॉलेज से या तो कॉलेज में तो आए हैं या कॉलेज से पास आउट हुए हैं या अभी कॉलेज में जा रहे हैं 11th-12th के बच्चों में, कि अब पेरेंट्स के बीच में एक वो जो पहले एक होता था कंसर्न कि नहीं सिर्फ आपने अगर इंजीनियरिंग में ही जाना है या डॉक्टर में ही जाना है, तो ये पेरेंट्स वाला फोर्स एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस बहुत कम है। अभी के बच्चों में मुझे वो सुनने में बहुत कम मिला कि नहीं ऐसा फोर्स नहीं है, हमें आराम से चुनने को दिया गया था ये ऑप्शन कि हमने क्या कर सकते हैं। हाँ, मतलब पेरेंट्स आर ओपन फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज। तो रियली मतलब ये एक चेंज आया है सोसाइटी में पेरेंट्स के बीच में, विच इज वेरी गुड फॉर दिस। तो मतलब लाइक व्हाट यू सेड कि जैसे इमोशनली इतना है कि नहीं है बच्चा, तो मतलब आराम से अपने आप को 9, 10th या 11th-12th में अपने आप को प्रॉपर वो अब बच्चे के पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो चूज कर सके। अब इतना ओपन माइंड थोड़ा सा हो गया है सोसाइटी। यस, तो यहाँ पे व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन। जैसा कि आपने बताया कि आज से 10 साल पहले तक
ऐसा कहा जाता था कि आपको 95% मार्क्स लाना है, आपको जी, इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर अदरवाइज बनना। योर करियर इज एज गुड एज ओवर। ये 10 साल जी, पहले का सिनेरियो था। मगर आज के जी, बच्चे इतने समझदार हैं और उनके पास दे हैव द बैकिंग ऑफ देयर पेरेंट्स एज वेल, दैट बिल्कुल, बिल्कुल। दे आर ब्रेव एनफ टू मेक अनकन्वेंशनल चॉइसेस। आज का एक बच्चा जी, जो है वो जर्नलिस्ट भी बनना चाहता है, उनके पेरेंट्स का हुँ, बैकिंग है। वो डेटा जी, एनालिसिस पर काम करना चाहता है एट द लेवल क्लास 10 itself he is aware of this thing that there are jobs ट्रू, in the market related to data analysis, all right, so this बिल्कुल, is बिल्कुल। something that is indeed very encouraging, ये बहुत ही जी, encouraging है, और it is a positive sign for the future, that is my view on that. बिल्कुल, बिल्कुल सर, राइट। सो एक टॉपिक अभी आया कि लेट्स से स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, शी वाज़ इन 12th स्टैंडर्ड, उसके पास कॉमर्स विद मैथ्स था। सो उसका एक क्वेश्चन था कि भैया मैं कॉमर्स में हूँ और मैं मैथ्स में हूँ, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे जो टॉपिक्स आते हैं, तो एक एग्जांपल है ऑफ कोर्स, ठीक है, कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो साइंस वालों के लिए अच्छे हैं, ठीक है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत यूज आता होगा इन सबका, बट कॉमर्स लेवल पे उन चीजों का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्योंकि मेरे पास मैथ्स था, इसलिए मुझे वो टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ रहे हैं। जब आगे मुझे कभी भी अकाउंट्स अकाउंट्स में कभी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन कॉस थीटा हमको कभी काम नहीं आएंगे फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट, कि फिजिक्स में या तो कभी चलो ठीक है वो अगर जनरलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें काम आ सकता है तो आ सकता है, बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये चीजें नहीं है। बट स्टिल उनको वही सब्जेक्ट दिया, उनको वही टॉपिक्स जो साइंस के लिए हैं, पीसीएम नॉन मेडिकल के लिए, वही टॉपिक्स कॉमर्स वालों को भी पढ़ाया जा रहा है सेम। जब ऐसे कुछ मर्ज होता है, जब ऐसे कुछ टॉपिक्स कॉमन निकलते हैं जैसे सब्जेक्ट्स, तो उनका एक मानना है कि नहीं टॉपिक्स ना हमारे जो एटलीस्ट डोमेन है जो हमने स्ट्रीम सेलेक्ट किया हुआ है उससे रिलेटेड ही हो, फालतू की चीजें हमको ना कराया जाए जिसका हमें फ्यूचर में मतलब 0% यूज है, कोई चांस भी नहीं है, सिंगल चांस भी नहीं है कि उसका यूज आए कभी। बिल्कुल। सो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज अ टीचर ऑफ हम्म, मैथमेटिक्स, जो मान लीजिए जो प्योर साइंसेस पढ़ा रहा है, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज टीचिंग हम्म, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स आर दोज हु बिलोंग टू द कॉमर्स स्ट्रीम, ओके। जी, सो इफ दो स्टूडेंट्स आस्क द टीचर कि सर ये किस काम में आएगा, कल मेरे को किस काम में आएगा, मुझे सीए बनना है, ठीक है, हम्म, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आएगा? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, द टीचर हैज नो आंसर, राइट। एज अ टीचर उसके पास इसका कोई आंसर नहीं है। वो क्या बताता है कि बच्चे हम्म, पढ़ो क्योंकि ये सिलेबस में है, ठीक है। तो जी, वेदर द सिलेबस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द टीचर, नो। टीचर का सिलेबस फॉर्मुलेशन में कोई से नहीं रहता, ऑलराइट। सो दिस हम्म, इज द सैड एंड डार्क पिक्चर। टीचर का सिलेबस ओके, फॉर्मुलेशन में पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसमें क्या एडिशन होगा, क्या डिलीशन होगा, मगर ये हम्म, सब्जेक्ट इन लेवल के बच्चों के लिए रेलेवेंट है या नहीं, दिस थिंग इज नॉट आस्क्ड टू द टीचर। दिस इज अ क्वेश्चन विच ऑलवेज रिमेन्स अ क्वेश्चन, right. So ओके, this is a very जी, valid concern, and हम्म, something needs to be done related to this, that हम्म, student should be given the impression that whatever they are studying, that is relevant for the job market। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स को हम्म, ये कॉन्फिडेंस ना दें कि जो वो पढ़ रहे हैं हम्म, वो उनके फ्यूचर के लिए रेलेवेंट है, तो उनमें वो मोटिवेशनल लेवल कभी नहीं रहेगा। सो दैट इज जी, समथिंग विच इज वेरी वैलिड कंसर्न एंड रिक्वायर्स हम्म, एड्रेसिंग डेफिनेटली। बिल्कुल सर। तो इसी से रिलेटेड मतलब ऑफ कोर्स इतना बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बट स्टिल एक बहुत अच्छा एक जैसे कहते हैं ना, अगेन आई एम गोइंग टू शेयर अ पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव नोट ऑन इट, कि स्टूडेंट्स के अंदर आज भी एक डिग्री की वैल्यू है। दे डोंट फील के मतलब जो बात हुई मैंने आज किया कि इफ यू आर वेल डू यू वांट टू गो फॉर डिग्री और फॉर नो डिग्री, कि अगर कोई बेसिक कोर्स, तो दे एक्चुअली शेयर्ड कि नहीं वी वांट टू गो फॉर डिग्री डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इशू या जो भी हैं कि इररिलेवेंट टॉपिक्स या जो भी है। बट लाइक से अगर मैं अपनी बात करूं कि जो मेरे टाइम पे जब हमारे एक थॉट होता था कि नहीं डिग्री इज द रिक्वायर्ड थिंग, बिना डिग्री के मींस यू आर नथिंग, बट आज का यूथ ये कह रहा है कि नहीं डिग्री इज अ रिकमेंडेड थिंग, डिग्री होनी जरूरी है, ठीक है, बट इट इज नॉट द रिक्वायर्ड थिंग कि अगर ये नहीं होगी तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एंड कुछ बच्चों ने ऐसे ये भी शेयर किया है इसके अंदर कि अगर हम फ्यूचर में कभी ऐसे जाते हैं और बड़ी कोई बड़ी पोस्ट पे अगर हम हायरिंग देखते हैं आगे, तो मैं हायर करूंगी तो मैं ये सिर्फ डिग्री देखूंगी कि डिग्री है या नहीं है, दोनों
भी चेक करेंगे, बट हम टेस्ट एवेल्युएट उसको भी करेंगे जिसके पास डिग्री है, एंड एवेल्युएट उसको भी करेंगे जिसके पास डिग्री नहीं है बट क्लेम कर रहा है कि ही नोज ऑल दीज स्टफ्स। सो डिग्री की वैल्यू डू यू थिंक कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कम हो रही है या कुछ ऐसा है? आप स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा रहते हैं, सो व्हाट इज योर बिल्कुल। पॉइंट ऑन What दिस? I observe related to this thing is that degree is a means to an end. That is what I always tell my students. It is not. It is only a means to an end. It cannot be an end in itself. आपके पास ओके। अगर डिग्री है तो it acts as a backup for you. All right. There are certain jobs for हम्म which you can apply only when you have that particular degree. You cannot become a हम्म chartered accountant without a degree of CA. All right. You cannot हम्म become an university professor without having a master's degree and in today's times also a PhD related to it. तो ऐसे ट्रू कुछ ट्रू ट्रू। प्रोफेशंस हैं जहां पे कि डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर in the last few years what I have observed is that a skill based education initiative has gained a lot of momentum. Like you said, आज का जो मॉडर्न HR मैनेजर है वो सिर्फ डिग्री को स्क्रूटिनाइज नहीं करता, वो स्किल्स को भी स्क्रूटिनाइज करता है। जैसे वन स्टूडेंट ही डजंट हैव अ डिग्री बट ही हैज अप्लाइड विथ सम अदर स्टूडेंट्स हु आर हैविंग डिग्रीज for a given post of say coder. He wants to code, he is a very good in coding. So in today's scenario the modern HR manager is going to give him an equal opportunity, which is a very positive thing. जो विच मॉडर्न इज अ एचआर पॉजिटिव, मैनेजर है बिल्कुल। which वो उसको भी उन्हीं बच्चों के साथ एक अपॉर्चुनिटी देगा टू प्रूव हिमसेल्फ। All right. So what I feel is that for certain jobs, a degree is a must. All right. And it is justifiably so. But in the long run, it is your skill that has equal importance, if not more importance. So degree and skill should always go hand in hand. In today's dynamic environment, अगर आपके पास skill नहीं है, तो you may have a large number of degrees supporting you, but you would always struggle in the workplace. All right. अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, निगोशिएशन स्किल्स नहीं है, if I am a teacher, I am a PhD holder, but I don't know how to manage the class. If I lack interpersonal skills, I do not know how to manage the students within the classroom, then my degree is जी। useless. So degree and skills should always go hand in hand, and it is a positive dimension that in today's times, skill is being given a great deal of importance by HR managers and all those persons who are in charge of giving jobs to youngsters. जी, इसी से रिलेटेड एक और आया है पॉइंट जो स्टूडेंट्स ने रेज किया है काफी, कि जो हम डिग्री मिलती है, जो एक मार्कशीट आती है, राइट, तो उसके अंदर हमें सिर्फ ये दिया था कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, आपने एकेडमिकली आपने इस सब्जेक्ट में इतना इतना स्कोर किया, दैट इज इट। बट अगर कोई स्टूडेंट कुछ दूसरे स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स, लाइक लाइक राइट यू सेड कि आपके पास डिग्री है बट आपके पास एक वो स्किल नहीं है कि आप स्टूडेंट संभाल सकते हैं, या आप एक सबको मतलब शांत करा के आप अपनी बात रख सकते हैं आगे, तो देन दैट डिग्री इज यूजलेस, राइट? सो उससे रिलेटेड दे सेड कि सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट वो चीजें कहीं ना कहीं ऐसे डिग्री के अंदर भी, नॉट जस्ट एकेडमिक, वो चीजें ऐड होनी चाहिए। सो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है कुछ? आई होप यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन। हाँ, yes, सोशल स्किल्स I मेनली understand. हम अगर डिग्री में ऐड करें। बिल्कुल, बिल्कुल। So again, I would first of all like to answer this in context of MBA level or BBA level where I am more directly involved. So we teach students at MBA level and BBA level. What I observe is that there are various instances that there are some students who get a GPA of 9 out of 10. That is, they are scoring 90% marks, but they are not taking any part in any extracurricular activities. ऐसे instances आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा marks centric approach उनका रहता है, all right, that they are totally devoted towards scoring good marks in the examination. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ग्रेड 6.5 या 7 आउट ऑफ 10 रहता है, but they are taking a great deal of interest in organizing certain events in the campus, जी। certain quiz shows, certain debate shows. तो उनका interpersonal skills often is better than those students who are entirely devoted upon securing marks. All right. तो बिल्कुल। इसमें मेरा जो पॉइंट है, द पॉइंट इज दैट वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है उसका डायरेक्ट बेनिफिट उनको मार्क्स के तौर पर नहीं मिल पा रहा हो,
It is not Hmm. reflecting in terms of their grades, but what is happening is that it is giving them some confidence from within that we are capable enough to organize events at the school level. So this confidence translates into their personality development, and they Hmm. benefit in the longer run. जो जॉब में वो जाते हैं तो चूंकि उनके पास ये मैनेजेरियल एक्सपीरियंस एट द स्टूडेंट लेवल आ जाता है, इवेंट्स वगैरह मैनेज Hmm. करके उनके पर्सनालिटी में एक निखार आ जाता है, तो दिस Hmm. ट्रांसलेट्स इनटू कॉर्पोरेट सक्सेस। ऑलराइट। जी तो जहां तक बिल्कुल। स्टूडेंट की बात है कि अदर एक्टिविटीज को मार्कशीट में रिफ्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो कंसर्न इज वैलिड। हम्म। I won't say that it is not valid. It should be reflected in the mark sheet in a formal manner. ऐसा होना चाहिए। मगर फिर हम्म। भी स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं होना चाहिए अगर वो मार्कशीट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू ऐड in terms of their skill, and that skill is going to count in the final analysis. All right. So ओके। अगर मार्कशीट में आज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप परेशान ना हो। इसका ये हम्म। मतलब नहीं है कि यू डिसाइड इन टर्म्स ऑफ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यू डेफिनेटली हम्म। पार्टिसिपेट बाय ऑल मीन्स। Marks are not राइट। everything. At the end of the day, what you learn, that is important. Your marks, हम्म। it is simply a piece of paper. If you do not understand the skills and you gain the concepts related to life skill, as it is said, related to what works in real life. हम्म। So students should हम्म। maintain a positive mindset related to this aspect. राइट, ठीक है। सो सर, और अगेन गोइंग फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट ऑन सर्वे लाइक व्हाट आई हैव डिड, कि अभी जनरली हमारे पास मूवीज में या स्टोरीज में या बुक्स वगैरह में चीजें, मतलब एक कहीं ना एक वो चीज दिखाई जाती है। मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे जैसे मैं फॉलो करता हूँ, ये वो करता हूँ, तो उसमें भी ये कहीं ना एक्चुअली इस पे फोकस किया जाता है कि नहीं, एजुकेशन इज नॉट सो गुड, सो लीव योर एजुकेशन एंड स्टार्ट लाइक डूइंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड लर्न थिंग्स एंड ऑल। सो बच्चों मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट के लिए एक कहीं ना कहीं उनको वो कराते हैं कि नहीं, आप ड्रॉप आउट करो, गो एंड फॉलो योर थिंग्स एंड एवरीथिंग, राइट। बट व्हेन आई आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट इट कि हाँ, आप ड्रॉप आउट के बारे में क्या सोचते हो, मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से एक बहुत ही, मेरे लिए काफी स्टार्टलिंग एक रिस्पॉन्स रहा कि उसमें से मतलब मोस्ट ऑफ, आई थिंक आई शुड से 90% ऑफ द किड्स सेड कि नहीं, वी डोंट बिलीव इन ड्रॉप आउट। इवन अगर कोई ड्रॉप आउट करता है तो मतलब ये है कि ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम रहा कि हमने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमको ये डिसीजन लेना चाहिए था कि हमको ये वाला सब्जेक्ट में जाना है या नहीं जाना है। बिकॉज व्हाट दे हैव शेयर्ड कि थिंग्स हैव चेंज्ड। कम्युनिकेशन पेरेंट्स के बीच में, लाइक हमने अभी पहले भी थोड़ा सा पहले बात किया कि पेरेंट्स भी अब ओपन है, लाइक यू सेड के दूसरे नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज के ऊपर भी पेरेंट्स अब मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं है एज सच। तो ड्रॉप आउट के रिलेटेड जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है ड्रॉप आउट को, राइट, ऑफ कोर्स काफी कंसर्न्स में ड्रॉप आउट इज गुड, बट जो एक मेजर जो एक ग्लोरीफाई कहते हैं ना कि यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट डूइंग अ ड्रॉप आउट, या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बीइंग इन दिस, वो चीज स्टूडेंट्स में नहीं आई है। मतलब अभी तो एटलीस्ट जितने मैंने सर्वे किया, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत ज्यादा सर्वे किया, सर्वे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट ट्रू। काफी कम स्टूडेंट्स के, बट जितने भी स्टूडेंट से बात करी मैंने, तो वो एक मुझे काफी अच्छा एक रिव्यू मिला उनमें से। तो बट यू आर इन कॉलेज, आपका डेली है, आपका सालों से है, आपके अकॉर्डिंगली इसके अंदर क्या चीज चल रहा है इन यूथ फॉर ड्रॉप आउट्स? Yes. So once again, यहाँ पे it is again a very valid question to discuss in the present scenario. Movies etc. are glorifying this concept. फॉर्मेटिव जी। माइंड्स को अगर आप 24/7 ये फीड करें कि आप गलत जगह पे हैं, वाई आर यू परसुइंग अ कॉलेज डिग्री, वाई आर यू परसुइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आप टिकटॉक पे वीडियो बनाइए, आप फेमस हो जाइए। अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट करें कि देयर आर शॉर्टकट्स, ये प्रोजेक्शन जो है, द बेसिक फ्लॉ विद दिस अप्रोच इज दैट यू आर आस्किंग अ यंग पर्सन टू क्विट समथिंग दैट ही इज डूइंग। ओके, जो वो कर रहा है उसे क्विट करके आप एक ऑल्टरनेटिव उसे सुझा रहे हैं। And what you are doing is that you are telling him that you would succeed in it directly. आप तुरंत उसमें एक व्हाट्सएप स्टार जी। या फिर आप टिकटॉक स्टार ओवरनाइट बन जाएंगे। तो देयर आर नो हाँ जी, शॉर्टकट्स टू सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बिल्कुल कीप जी, दिस इन बिल्कुल। माइंड, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। अगर आप टिकटॉक हम्म। स्टार भी बनना चाहते हैं तो आपको उससे रेलेवेंट मेहनत जरूर करनी पड़ेगी।
apart from बिल्कुल having some inbuilt talent related to it. तो जैसा आपने कहा कि जो सर्वे आपने अभी तक किया है, that is suggesting that students are not dissuaded by this sort of projection, that what you are doing in a college, come and join TikTok, come and do something unconventional. So that is a very positive sign that आज का जो youth है, he is mature enough to understand that वेरी ट्रू। it is not true to quit your प्रेजेंट डिग्री एंड बी सक्सेसफुल समवेयर एल्स। मजा तो तब है जब आप डिग्री भी गेन करें और सक्सेस भी गेन करें उसी फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और दिस शुड बी स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ इट इन अ लार्जर स्केल, दैट कोई ऐसा गलती ना करे कि ड्रॉप आउट करना इज अ पैरामीटर फॉर सक्सेस। इस तरह के नॉनसेंस को कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। इट शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। अर्न योर डिग्री, acquire your skills and go and succeed in life. So that should be the steps. राइट, लगे आपने पहले भी वैसा कि नो मैटर जितनी मर्जी एजुकेशन आउटडेटेड हो, प्रॉब्लम्स हो, ये हो, बट डिग्री हमेशा एक हमारे लिए बैकअप रहता है कि जॉब के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अवेलेबल रहेगा हमारे लिए ऑप्शन। बिल्कुल, एज यू सेड अर्लियर, राइट? ठीक है, ओके। सो अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि अब लॉकडाउन आया अभी कोविड का, एंड रातों रात एजुकेशन सेक्टर बदल गया। एक ऐसा सेक्टर जो इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था, इतनी चीजें कभी सोची भी नहीं थी कि टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा शिफ्ट आएगा। हम टेक्नोलॉजीज भी लेकर आए थे तो सिर्फ क्लासरूम लेवल तक टेक्नोलॉजी थी, घर पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो होम एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली क्लासरूम लेवल पे टेक्नोलॉजीज थी हमारे पास, स्मार्ट क्लास थे, कंप्यूटर्स थे, सीबीटी लैब्स थी। सो रातों रात एक बहुत मेजर शिफ्ट आया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड, के सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, ऑनलाइन क्लासेस, और एकदम से इतना चैलेंजिंग एक व्हाट आई फील पर्सनली बीइंग इन अ टेक्निकल गाय के रातों रात टीचर्स को टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है, मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है, स्टूडेंट्स को सीखना पड़ रहा है, पेरेंट्स को सीखना पड़ रहा है हाउ टू ऑपरेट दिस ऑल। सो लॉकडाउन या पोस्ट कोविड की एजुकेशन या आशा से, और ये भी 100 दिन के अंदर अंदर, ये ऐसा भी नहीं कि हाँ जी इतना मेजर इम्पैक्ट जो हमने अभी देख रहे हैं, ये था आई थिंक हमको 10-15 साल लगते हैं इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने, इतना मेजर चेंज देखने के लिए, जो हमने 100 दिनों के अंदर अंदर देख लिया। सो उससे रिलेटेड आप क्या थोड़ा सा प्लीज गाइड किया, प्लीज एक तरह ना पिक्चर दिखाइए कि अभी एजुकेशन सिस्टम में आगे हम क्या है, क्या देख रहे हैं आगे, कैसी फिजिबिलिटी है, बोथ फॉर द प्रीमियर स्कूल्स या स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बोलूंगा, या एंड नॉन प्रीमियर स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉलेजेस स्टूडेंट्स या उन दोनों के लिए। ओके, first of all, once again I would like to share my personal experiences related to this. I haven't stepped inside a classroom for 110 days to be precise. Since March 18 I don't have the privilege of stepping into a classroom to take conventional lectures. All right, ऐसा कहा गया कि you have to take online classes. Okay, I learned so many skills in the last 100 days that I may not have learned any of them had the lockdown not happened. The positive way of looking at it is in this manner. वो ऐसे skills मुझे gain करना पड़ा. I have discussed this with you informally as well, that how to take videos, and that I always take your help related to this. YouTube में videos कैसे upload करें, Zoom classes को effective कैसे बनाए, animation कैसे lectures में incorporate करें. So all these things were not needed in conventional chalk and duster teaching that I was proficient with. So as when the lockdown happened, I was once again a beginner. I had to begin from zero level. After 14 plus years of teaching experience, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है. I am at the zero level. मुझे software बढ़िया से सीखना पड़ेगा. But I managed to cope up, and a majority of the teachers managed to cope up. Clear? So that is the positive aspect. बहुत सारे लोगों को अपने skills को upgrade करना पड़ा under compulsion, और ऐसा वे कर भी पाए. That is the पॉजिटिव थिंग. आपस में कोलैबोरेशन हुई. मेरे फैकल्टी सर्कल में जो टेक्निकली उतना स्किल नहीं है, दे गॉट इन टच विथ मी ओवर द फोन. आई हेल्प देम. वेयर आई वाज स्टक, आई गॉट इनटू टच विथ यू एंड अदर टेक्निकल पीपल टू गेट सम गाइडेंस, एंड आई गॉट माय जॉब डन. सो दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट. But the negative aspect is that online education cannot replace conventional classroom teaching.
ओके, देयर आर सेवरल बॉटलनेक्स इन्वॉल्व, बहुत सारे इश्यूज जी हैं। रूरल एरियाज में इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है। ओके, देयर आर इकोनॉमिक कंसर्न्स, बहुत सारे पर्सन हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं है टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑलराइट, so there are concerns as well, but right now what is the scenario is that we are forced to rely upon online education because we need to keep our students in touch with their education. So online education is something that is in a very nascent stage, बहुत ही beginner stage में है आज के तारीख में। अब ये कैसा शेप अप करता है that only time will tell, but being a positive person from within, I view it as an opportunity. I would have been a non-technical teacher had the lockdown not happened, but as the lockdown has happened, I have pulled my socks as far as technical skills are concerned, and I have gained a lot, and I wish to gain further. But how the scenario pans out in the future, that remains to be seen. ओके ठीक है सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो एक्चुअली थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट? कि वी स्टार्टेड अ ग्रुप जिसमें आप भी एक मेंबर थे, ठीक है? कि अबाउट कि टीचर्स आपस में अपना रिसोर्स शेयर करें ड्यूरिंग इन दिस लॉकडाउन पीरियड के। ऑफ कोर्स एकदम से टेक्नोलॉजी जैसे आया था एंड कहीं ना एकदम से हिट हुआ था टीचर्स को। एंड मेरे पास काफी रिसोर्सेज थे, मैंने काफी जगह से रिसोर्स कलेक्ट किए, मेनली जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशंस वगैरह टीचर्स की। आपने भी काफी इनपुट्स दिए अपने, लाइक हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो, आपके भी काफी अच्छे इनपुट्स रहे थे उसके अंदर। तो बट व्हाट आई फाउंड वाज कि कहीं ना कहीं काफी टीचर्स, या एक्चुअली इंडिया की अगर बात करूं तो एक अपना फ्री, जिसे कहते हैं ना, हम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में उसको कहते हैं ओपन सोर्स शेयरिंग। इफ आई हैव अ नॉलेज, मुझे कोई सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी है, मुझे लगा है कि सॉफ्टवेयर में है, तो हम ओपन सोर्स मतलब उसको कंट्रीब्यूट करते हैं अपना डेवलपमेंट, एक स्पेसिफिक एक पूरा स्ट्रक्चर को सेटअप करने में, राइट? आई वाज काइंड ऑफ ट्राइंग टू मेक सच थिंग, बट वो कहीं ना कहीं एक चीज ओपन सोर्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम सब कुछ चीजें शेयर कर सकें, अपने रिसोर्स शेयर कर सकें, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकें, हम क्या यूज कर रहे हैं, तो मुझे वहां कहीं ना काफी रिस्ट्रिक्शन फील हुआ टीचर्स के बीच में शेयरिंग के मामले में अगर मैं बात करूं। तो उससे रिलेटेड एज अ टीचर, राइट, आई नो यू आर वेरी ओपन, आपने सामने से आके आपने बहुत चीजें अपने रिसोर्सेज शेयर करी, बट स्टिल मेरा कहना, बिकॉज आई एम अ टेक गाय, मैं टीचिंग लाइन से नहीं हूं, आई ट्राइड बीइंग ट्रेनिंग बट नहीं हुआ। सो यस, बीइंग अ टीचर, आप इससे रिलेटेड, बिकॉज ऑफ यू विल हैव अ से, आई वांट टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। Okay. So in the present lockdown period, as I said, that there are a great deal of challenges. All right. So one of the major challenges is that students are, majority of the students may not be having access to the resources that they require. So there is where collaboration comes into the picture. जैसा आपने जो पेज बनाया है उसके बेसिस पर आप चाहते हैं कि टीचर्स कंट्रीब्यूट करें, तो कुछ टीचर जो हैं वो अभी तक उतने ज्यादा वहाँ एक्टिव नहीं है और कुछ हैं, तो it is time that teachers collaborate among themselves first. All right, so teachers should collaborate among themselves and they should arrive at a consensus that these are tough times. Students should not be made to suffer. As a teacher, my duty is that I should be available 24/7 in today's times. पहले मेरा जो टीचिंग ड्यूरेशन था वो थोड़ा सा अलग था कन्वेंशनल एजुकेशन में। फ्रॉम 9 to 5:30 आई वाज एट कॉलेज एंड आई वाज एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स only during that time. But in this period, I have to be accessible 24/7 because I am teaching in online mode. So similarly, resource sharing should also occur 24/7. So this is something that teachers should take a note of, and they should try to be proactive in terms of sharing resources. So teachers के बीच में थोड़ा अधिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है ताकि इस ब्लॉक, इस गैप को हम लोग एड्रेस कर पाए, और ultimately students need to benefit, and that is what we all aim towards. Right. Thank you so much, sir, for all your inputs, and really we got some really good comments for all the inputs, wonderful inputs. We got an comment from Sandeep Mukherjee, Vipin Bansal, Shalini Kundrai. So yes, it was a really great session, and again मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा for all our viewers. Yeah, of course this video will be in the Samartha Facebook page later as well after this. के
इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कशन था या कुछ एक पॉसिबिलिटीज को मेनली आगे लाना था कि क्या चीजें हम कर सकते हैं। हम दोनों में से किसी का भी कभी भी कोई भी इंटेंशन ये नहीं था कि हम किसी को ब्लेम करें, हम किसी को नेगेटिव करें। It was never our intention. It is nothing like that. I'm just, a point of verbal disclaimer, जो subject, mutual subject वाला. So it is just the same thing. Yes. Okay. So yes, we are just giving our best कि possibilities किस तरह से हम youth और education के बीच में जो communication है हम better करें, हम education को better करें ताकि youth उसको अच्छे से गेन कर सकें, उसको आप बेटर उससे बेनिफिट ले सके। सो दैट इज व्हाट ऑल आवर इंटेंशन वाज फॉर ऑल दीज सीरीज। एंड नेक्स्ट सेशन में हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर अमित माइकल फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लाइक इन्होंने ऐसे शेयर किया कि अबाउट टिकटॉक एंड ऑल। सो लेट्स गेट द व्यू अबाउट एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो लोग हैं वो इसके बारे में कैसा फील करते हैं। सो नेक्स्ट सैटरडे at 6 PM हम मिलेंगे अमित माइकल से। हम डिस्कशन करेंगे अबाउट सेम थिंग्स, ओके, अबाउट टिकटॉक या अबाउट नॉट जस्ट टिकटॉक, अबाउट एनी ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बीइंग इन यूट्यूब या मॉडलिंग या सिंगिंग या व्हाटसएवर इन द इंडस्ट्री। फिर वहां पे हम जाते हैं। सो व्हाट इज इट अबाउट फॉर यूथ एंड फॉर द इंडस्ट्री। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर सौमित्र फॉर बीइंग विद अस, and thanks a lot for all your time and your contribution to Samarthya. Thank you everyone for listening to us. My privilege, yes, Akshit. I wish you all the best in your future endeavors, and always count on my support for a good cause. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you everyone for being with us. Please join us again next Saturday at 6 PM. Thank you.